Good morning to all of you. This is Nagma, your biology teacher, and welcome to the Sims official YouTube channel. Students, I hope all you are fit and fine at your places. So today we are going to start animal tissue. We have completed with the plant tissue. हमने plant tissue में बहुत सारे उसका सब type देखा, and हमने देखा कि कौन से tissues हमारे growing parts में present होते हैं. We have learned about the meristematic tissue and permanent tissue, in which we have also subdivided the meristematic tissue into the three major parts: the apical, intercalary, and इंटरकैलरी एंड एपिकल इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम में हमने देखा था. परमानेंट टिश्यूज को हमने देखा जिस इज डिवाइडिंग टू टू टाइप्स, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने देखा. उनके वेरियस टाइप्स देखे, उनके डिफरेंट फंक्शन देखे. ठीक है, आज हम एनिमल टिश्यूज देखेंगे. आज द सो है इज द वी कैन से द चार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू जो हमारे जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू दे रखे हैं. So in which the animal tissues are divided into four major groups. We can say the four major types, in which the first we have the epithelial tissue, second we have the connective tissue, third we have the muscular tissue, and fourth one we have the nervous tissue. In epithelial tissue, it is also subdivided into different types: the squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, glandular epithelium, and ciliated epithelium. Okay, the connective tissue are also subdivided into three types. The first we have connective tissue proper, the supportive tissue, and fluid connective tissue. In connective tissue proper, we can you can see here the three divided parts: the areolar tissue, second we have the adipose tissue, and third we have the fibrous connective tissue, in which we will learn about the tendons and ligaments. Okay, the supportive connective tissue की अगर in supportive connective tissue we have two major type, which we can say the two category we will learn. The first we have the cartilage and the second we have the bones, जो हमारे skeleton system में बहुत most important role play करता है. अगर हम fluid connective tissue की बात करें, इसमें हम देखेंगे the fluid part हमारे body में जो present होता है in the form of blood and lymph, वो किस तरीके से connective tissue का काम करता है. थर्ड कैटेगरी जो हमारे एनिमल टिश्यू की है टाइप, जिसे हम कह सकते हैं मस्कुलर टिश्यू, विच इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू थ्री types. The first we have the striated muscle, unstriated muscle, and cardiac muscle. The four types we have in the nervous tissue. Okay, तो ये हमारा एक प्रॉपर चार्ट है हमारा एनिमल टिश्यू का, जिसमें हम वन बाय वन करके सबके टाइप्स पढ़ेंगे, इनके सब टाइप्स पढ़ेंगे, इनको अच्छे से देखेंगे. ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. फर्स्ट वी हैव द एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारा फर्स्ट टाइप था एनिमल टिश्यू का. ओके, so in epithelial tissue, it is the simplest protective tissue found all over the animal body as cover like epidermis in plants. ठीक है, अगर हम epithelial tissue की बात करें तो ये एक सिंपल हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है. जिस तरह से प्लांट की बॉडी में एपिडर्मिस आउटर कवरिंग होती है, उस तरीके से एनिमल की बात करें हम, अगर इस तरीके से एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में भी हमारा epithelial tissue present होते हैं. ठीक है, it also lines the inside of all cavities like mouth, throat, stomach, intestine, windpipe, lung and blood vessel. अगर हम देखें तो एपिथेलियल टिश्यू की जो लाइंस प्रेजेंट होती हैं वो हमारी बहुत सारी जो कैविटीज प्रेजेंट होती हैं उनकी लाइंस में हमारे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे माउथ, थ्रोट, स्टमक, इंटेस्टाइन, विंड पाइप, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स में. ठीक है, it is continuous, tightly packed like sheet with little cementing material and almost no intracellular spaces. इनमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड शीट्स के रूप में होते हैं जो कि सीमेंटिंग मटेरियल से जुड़े हुए होते हैं, एंड ऑलमोस्ट इनमें कोई इंट्रासेलुलर स्पेस इनकी सेल्स में दिखा नहीं जाता है. एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम. कुछ भी जो हमारी बॉडी में एंटर करता है या फिर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो उसको एपिथेलियम की लेयर से होकर ही गुजरना होता है. ठीक है, एज अ रिजल्ट द परमिबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. अगर हम इसको हम कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो इसकी परमिबिलिटी, हमारी सेल्स की परमिबिलिटी, जो एपिथेलियम लेयर हमारी जो इसकी लाइनिंग प्रेजेंट होती है हमारी, वो एक परमिबिलिटी में बहुत बड़ा हमारा रोल प्ले करती है. कोई भी मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है या हमारी बॉडी से एक्सचेंज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसमें अगर हम बात करें किस चीज के बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की. ठीक है, एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी,
किसी भी तरीके का एक्सचेंज होगा, कुछ भी मटेरियल का एक्सचेंज होगा, तो उसमें ये हमारे एक तरीके का परमेबिलिटी का काम करेगा हमारी। हम कह सकते हैं कि परमेबल, जिसे इस तरीके से हमने सेल में देखा था कि हमारी एक सेल में हम अगर बात करें तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी का काम करती है, ठीक है, विच इज प्रोवाइड द, जो कि कोई भी हमारा जो मटेरियल होता है, हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ही गुजरता है एंड सेल से उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ही बाहर जाता है। इसी तरीके से हमारे एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें, एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, तो ये भी हमारे बॉडी में जो कोई भी मटेरियल जब बाहर जाएगा या अंदर आएगा हमारी बॉडी के, या फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में उनका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, तो इससे होकर ही होता है, ठीक है। द एपिथेलियल सेल्स आर अटैच्ड टू अ डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये किससे एक अटैच होती है? डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती है, which has a wide network of non-elastic collagen fibers and protein collagen। जिसके पास क्या होता है, हमारा एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क किस चीज का? नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स का एंड प्रोटीन कोलेजन का। ओके, दिस टिश्यू इज नोन एज अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू व्हेन इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस लेयर ऑफ सेल। जब ये बहुत सारी वेरियस लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, तो इसे हम एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंसिडर करते हैं। ओके, फंक्शंस क्या क्या हैं इसकी? So it forms the outer layer of skin and protect the underlying cells from any injury और microorganism infection और chemical effect। ये क्या करता है? ये हमारा आउटर लेयर ऑफ स्किन का फॉर्मेशन करता है एंड प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल्स को किसी भी इंजरी से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से और किसी भी केमिकल इफेक्ट से। ओके, इट इज प्रोटेक्ट द कैविटीज बाय लाइनिंग और कोटिंग देम। ये क्या करता है? ये हमारी प्रोटेक्ट करता है कैविटीज को और उनको लाइनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक तरीके की लाइनिंग प्रोवाइड करेगा एंड उसमें उसको कोट कर देगा। इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होती है, ठीक है। इट हेल्प टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में भी हेल्पफुल होता है। Some epithelial tissue perform the function of secretion. They secrete a number of substances like blood, saliva, enzymes, sweat, etc. कुछ जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो परफॉर्म करते हैं बहुत सारे सेक्रेशन वाले फंक्शन को, जो कि सेक्रेट करते हैं बहुत सारे, अगर हम कह सकते हैं सब्सटेंस को, लाइक ब्लड का सेक्रेशन कर रहा है या एंजाइम्स का सेक्रेशन कर रहा है या सलाइवा का सेक्रेशन कर रहा है या स्वेट का सेक्रेशन कर रहा है। तो ये बात हो गई हमारे एपिथेलियल टिश्यूज की। अगर हम मोटे मोटे तौर पर इसको समझें तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है? हमारे बहुत सारी जो हमारे ऑर्गन्स, अगर हम कह सकते हैं माउथ हो गया, हमारा स्किन हो गया, हमारा थ्रोट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, उनकी कैविटीज को लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है, परमेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी सब्सटेंस उससे बाहर निकल रहा है या उसके अंदर एंटर कर रहा है तो उससे ही होकर गुजर रहा है, मतलब बिना ये हमारी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। ये अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है, हमारा न्यूट्रिएंट के, वाटर के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है, हमारे एलिमिनेट करने में वेस्ट प्रोडक्ट्स को हेल्प कर रहा है, हमारा वेरियस फंक्शंस कर रहा है, हमारे सेक्रेशन वाले, जो कि हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस लाइक ब्लड, सलाइवा, एंजाइम और स्वेट के सेक्रेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हमें इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एंड केमिकल इफेक्ट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। अगर हम सिंपल वे में देखें, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, हमारे इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, जो हमने इसके 4 मेजर जो हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा है, हमने 5 तरीके के हमने एपिथेलियल टिश्यू देखे कि कौन से एपिथेलियल टिश्यू हमारे कौन से हमारे ऑर्गन में, कौन से हमारे पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इनके नीड के अकॉर्डिंग, इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम वो देखेंगे जो हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे अपने इसके ऊपर, लाइक हमारा जो स्क्वैमस था, ग्लैंडुलर था, कॉलमिनर था, स्लीटेड था, हमारा क्यूबॉइडल था। हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टूडेंट्स, अपनी जो हम अपने लेक्चर्स होते जा रहे हैं, हमारे वीडियो लेक्चर, उनको टाइम पर रिवाइज करते चलिए एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करते चलिए, ठीक है। So thank you so much for today's video and we will meet again in the next video session. Till then, just take care of yourself and thank you so much.